हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे द हैप्पी प्रिंस। इस कहानी के रचनाकार हैं ऑस्कर वाइल्ड। अ, इस कहानी के अंदर एक राजकुमार और उसकी प्रजा की कहानी है। जिस जिसकी प्रजा में अमीर लोग तो बड़े सुख और चैन से रहते थे, चाहे गर्मी हो या सर्दी। पर जो नीचे स्तर के लोग थे वह दुखी व परेशान रहते थे। जिसे जिसे राजकुमार अपने अ, जो उसकी मूर्ति थी वह सोने और सोने की परत और कीमती मोतियों व हीरे से जड़े बनाई गई थी। तो जिससे वह अपने प्रजा की मदद करने के लिए उस उन्हें उनमें निकाल के उन्हें देता था। तो आइए शुरू करते हैं। द हैप्पी प्रिंस। खुश ओ खुश राजकुमार। द हैप्पी प्रिंस was a beautiful statue. He was covered with gold. He had sapphires of for eyes and a ruby in his sword. Why did he want to part with all the gold that he had and his precious stones? प्रसन्न राजकुमार एक सुंदर मूर्ति थी। वह सोने से ढकी हुई थी। उसकी आंखों के स्थान पर नील मणियां थीं और एक लाल मणि उसकी तलवार में थी। वह सोने को वह सोने को जो उसके ऊपर चढ़ा था और अपने कीमती पत्थरों से अलग क्यों होना चाहता था। High above the city, on the tall columns, stood the statue of the happy prince. He was girded all over with thin leaves of fine gold for eyes. He had two bright sapphires and a large red ruby glowed on his short hilt. One night there flew over the city a little swallow. His friends had gone away to Egypt 6 weeks before, but he had stayed behind. Then he decided to go to Egypt too. All day long he flew, and at night time he arrived at the city. Where shall I put up? He said. I hope the town has made pre preparations. नगर से एक ऊंचे स्तंभ पर प्रसन्न प्रिंस की मूर्ति खड़ी थी। वह सुंदर सोने की पतली परत से जड़ी हुई थी। उसकी आंखों के स्थान पर दो चमकीली नील मणियां थीं और उसकी तलवार के हत्थे पर एक बड़ी लाल मणि चमकती थी। एक रात नगर पर से एक छोटे अबाबिल ने उड़ान भरी। उसके मित्र 6 सप्ताह पहले ही मिस जा चुके थे, लेकिन वह पीछे रह गया था। तब उसने भी मिस जाने का निश्चय किया। सारे दिन भर वह उड़ता रहा और रात के समय वह एक नगर में पहुंचा। मैं कहाँ ठहरूंगा, उसने कहा। मुझे आशा है कि नगर में तैयारियां कर ली हैं। Then he showed the statue on the tall column. I will put up there, he cried. It is a so fine position with plenty of fresh air. So he alighted just between the feet of the happy prince. I have a golden bedroom, he said softly to himself as he looked around, and he prepared to go to sleep. But just as he was putting his head under his wing, a large drop of water fell on him. What a curious thing, he cried. There is not a single cloud in the sky. The stars are quite clear and bright, but yet it is raining. Then another drop fell. What is the use of a statue if cannot keep the rain off? He said. I must look for good chimney pot. And he
determined to fly away. तब उसे एक ऊंचे स्तंभ पर एक मूर्ति दिखाई दी। मैं वहां ठहरूंगा, वह चिल्लाया। यह एक सुंदर स्थान है जहां पर्याप्त ताजा हवा है। इसलिए वह हैप्पी प्रिंस के पैरों में ठीक बीच में उतरा। मेरे पास एक सुनहरा शयन कक्ष है। उसके चारों ओर देखा और धीरे से कहा, और वह सोने की तैयारी करने लगा। लेकिन ठीक उस समय जब अपने सिर को अपने पंखों के नीचे रख रहा था, पानी की एक बड़ी बूंद उस पर गिरी। क्या विचित्र चीज है, वह चीखा। आकाश में एक भी बादल नहीं है, तारे बिल्कुल स्पष्ट एवं चमकीले हैं, और फिर भी वर्षा हो रही है। तब दूसरी बूंद गिरी। एक बूंद का क्या फायदा है यदि हम वर्षा से नहीं बच सकता, उसने कहा। मुझे किसी चिमनी के ऊपर के भाग को खोजना होगा। और उसने उड़ जाने का निश्चय किया। तब दूसरी बूंद गिरी। नहीं, but before he had opened his wings, the third drop fell, and he looked up and saw. Ah, what did he see? The eye of the happy prince were filled with tears, and tears were running down his golden cheeks. His face was so beautiful in the moonlight that the little swallow was filled with pity. Who are you? He said. I am the happy prince. Why are you weeping then? Asked the swallow. You have quite drenched me when I was alive and had a human heart, answered the statue. I did not know what tears were, for I lived in the place where sorrow is not allowed to enter my co- courtiers called me the happy prince, and happy indeed I was. So I lived and so I died, and now that I am dead, they have set me up here too so high that I can see the ugliness and all misery of my city. And through my heart is made of lead, yet I cannot choose but weep. लेकिन इससे लेकिन इससे पहले कि वह फैल अपने पंखों को फैलाता, एक तीसरी बूंद गिरी और उसने ऊपर की ओर देखा। आ उसने क्या देखा? हैप्पी प्रिंस की आंखें आंसुओं से भरी थीं, और आंसू उसने उसके सुनहरे गालों से नीचे की ओर बह रही थी। चंद्रमा की रोशनी में उसका चेहरा इतना सुंदर लगा कि एक छोटा अबाबील दया से भर गया। तुम कौन हो? उसने कहा। मैं प्रसन्न राजकुमार हूँ। तब तुम क्यों रो रहे हो? अबाबील ने पूछा। तुमने मुझे बिल्कुल भिगो दिया है। जब मैं जिंदा था, मेरा मानवीय हृदय था। स्तंभ ने जवाब दिया। मैं नहीं जानता कि आंसू क्या होते हैं, क्योंकि मैं महल में रहा करता था जहां दुख का प्रवेश करने की इजाजत नहीं थी। मेरा दरबारी मुझे प्रसन्न राजकुमार कहकर बुलाते थे, और मैं वास्तव में ही प्रसन्न था। इस प्रकार मैं रहा, और इसी प्रकार मैं मर गया। अब इस प्रकार मैं रहा, और इसी प्रकार मैं मर गया, और अब मैं मरा हुआ हूँ। उन्होंने मुझे यहाँ ऊंचाई पर स्थापित कर दिया ताकि मैं अपने नगर की
कुरूपता एवं सभी दुखों को देख सकूं। यद्यपि मेरा दिल शीशे का बना हुआ है, फिर भी मैं रोने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकता। What? Is he not solid gold? Said the swallow to himself. He was too polite to make any personal remarks. Far away, continued the statue in low musical voice. Far away in a little street, there is a poor house. One of the window is open, and through it I can see a woman seated at a table. Her face is thin and worn when she has coarse red hands and picked by the needle, for she is a mistress. She is embroidering flowers on a satin grove for the loveliest of the queen's maids of honor to wear at the next court ball in a bed in the corner of the room. Her little boy is lying ill. He has a fever and is asking his mother to give him oranges. His mother has nothing to give him but river water, so he is crying. Swallow, swallow, little swallow, will you not bring her the ruby out of my sword hilt? My feet are fastened to this pedestal and I cannot move. I am waited for in Egypt, said the swallow. My friends are flying up and down the Nile and talking to the large lotus flowers. Soon they will go to sleep. The prince asked the swallow to stay with him for one night and be his messenger. The boy is so thirsty and the mother so sad. He said, क्या क्या वह ठोस सोना नहीं है? अबाबिल ने स्वयं से कहा। वह इतना विनम्र था कि उसके बारे में व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं की जा सकती थी। यहाँ से बहुत दूर मूर्ति ने एक धीमी संगतिया पापा एक संगतीय आवाज में कहा। यहाँ से दूर एक छोटी सी गली में एक निर्धन है, उसकी एक खिड़की खुली है और उसके पार मैं एक महिला को एक टेबल के पास बैठे देख सकता हूँ। उसका चेहरा दुबला और थका हुआ सा है और उसके हाथ रूखे लाल हैं जिन पर सुई की चुभन के निशान हैं, क्योंकि वह एक दर्जन है। वह एक साटन के बने गाउन पर फूल काट रही है जो रानी की परिचायिका का है। वह इसे अगले शाही नृत्य में पहनेगी। उसका छोटा सा पुत्र कमरे में एक कोने में बीमार पड़ा है। उसे बुखार है और वह अपनी माँ से संतरे की मांग कर रहा है। माँ के पास केवल नदी के पानी के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, इसलिए बच्चा रो जा रहा है। अबाबिल ने अबाबिल, क्या तुम मेरी तलवार से लाल मणि निकाल कर उसके पास पहुंचा दोगे? मेरा पांव तो इस स्तंभ से बंधे हैं और मैं हिल भी नहीं सकता। मिस्र में मेरा इंतजार किया जा रहा है। अबाबिल ने कहा। मेरे दोस्त नील नदी पर ऊपर नीचे उड़ रहे हैं और बड़े कमल के फूलों के बारे में बातें कर रहे हैं। वह शीघ्र ही सोने चले जाएंगे। राजकुमार ने अबाबिल को एक रात के लिए उसके पास रहने और उसका दूध बनने के लिए कहा। बच्चा इतना प्यासा है और उसकी माँ बहुत उदास है। उसने कहा, I did not think I like boys.
answered the swallow. I want to go to Egypt, but the happy prince looked so sad that a little swallow was sorry. It is very cold, her, he said, but he agreed to stay with him for one night and be his messenger. Thank you, little swallow, said the prince. The swallow picked out the great ruby from the prince's sword and flew away with it in his beak over the roofs of the town. He passed by the ca- cathedral tower where the white marble angels were sculptured. He passed by the place and heard the sound of dancing. A beautiful girl come out on the balcony with her lover. I hope my dress will be ready in time for the state ball. She said, I have ordered flower to be embroidered on it. But the सेम स्टेटस आर सो लेजी मैं नहीं सोचता कि मुझे लड़के पसंद हैं अबाबिल ने जवाब दिया मैं मिस्र जाना चाहता हूँ लेकिन हैप्पी प्रिंस इतना अधिक उदास दिखाई दिया कि छोटे अबाबिल को दुख हुआ मैं यहाँ बहुत ठंड है उसने कहा लेकिन उसने राजकुमार के पास एक रात रहने और उसका दूध बनने के लिए सहमति दे दी छोटे अबाबिल तुम्हारा धन्यवाद राजकुमार ने कहा अबाबिल ने राजकुमार की तलवार से विशाल मणि बाहर निकाली और इसे अपनी चोंच में उठाकर नगर की छतों से ऊपर उड़ गया वह गिरजाघर की मंदिर के पास से गुजरा जहां सफेद संगमरमर के देवदूत खुदे हुए थे वह महल के पास से गुजरा और उसने नृत्य की ध्वनि सुनी एक सुंदर लड़की अपने प्रेमी के साथ छज्जे पर आई मुझे आशा है कि मेरी पोशाक शायद नृत्य समारोह तक तैयार हो जाएगी उसने कहा मैंने इस पर फूलों की कढ़ाई के लिए कह रखा है लेकिन दर्जन बहुत ही आलसी होती हैं he passed over the river and saw the lanterns hanging on the masts of the ships. At last he came to the poor woman's house and looked in. The boy was tossing feverishly on his bed, and the mother had fallen asleep. She was so tired, and he hoped and laid the great ruby on the table beside the woman's thimble. Then he flew gently round the bed, fanning the boy's forehead with his wings. How cool I feel, said the boy. Said the boy, I must be getting better. And he sank into a delicious slumber. Then the swallow flew back to the happy prince and told him what he had done. It is curious, he remarked, but I feel quite warm now. Although it is so cold, that is because you have done a good action, said the prince. And the little swallow began to think and then fell asleep. Thinking always made him sleepy. When day broke, he flew down to the river and had a bath. Tonight I go to Egypt, said the swallow, and he was in high spirits at the prospect. He visited all the monuments and sat a long time on top the church step, steeple. वह नदी के ऊपर से गुजरा और जहाजों के मस्तूलों से लटकती हुई लालटेन दिखाई दी
अंत में वह गरीब महिला के घर पहुंचा और उसने अंदर देखा। बच्चा अपने बिस्तर पर बुखार से लुढ़क रहा था और माँ को नींद आ गई। वह बहुत थक गई थी। वह फुदक कर अंदर गया और महिला के अंगुली पर उंगली पर पहनने वाले कैप की बगल में विशाल मणि को रख दिया। वह फिर हल्के से पलंग के ऊपर उड़ा और अपने पंखों से उसने बालक के माथे पर हवा की। मैं जब कितनी ठंडक महसूस कर रहा हूँ, बच्चा बोला। मैं अब अवश्य ही स्वस्थ हो जाऊंगा। और वह मधुर नींद में चला गया। तब अबाबिल हैप्पी प्रिंस के वो तब अबाबिल प्रसन्न राजकुमार के पास वापस लौटा और उसने बताया कि उसने क्या क्या काम किया था। यह विचित्र बात है, वह बोला, परंतु मैं अब बहुत गर्मी महसूस कर रहा हूँ। यद्यपि बहुत सर्दी है। इसी कारण यह इसका कारण यह है कि तुमने एक अच्छा काम किया है, प्रिंस बोला। और छोटा पक्षी सोचने लगा और फिर सो गया। सोचने पर उसे सदा ही नींद आ जाती थी। जब दिन निकला तो वह नदी पर उड़कर गया और उसने स्नान किया। आज रात को मैं मिस्र के लिए रवाना हो जाऊंगा, अबाबिल ने कहा। और इस विचार से वह हर्षित हो उठा। उसने सभी समा स्मारकों को देखा और चर्चा की। छत पर बनी मीनार पर काफी देर तक बैठा रहा। When the moon rose, he flew back to the happy prince. Have you any commissions for Egypt? He cried. I am just starting. Swallow, swallow, little swallow, said the prince. Will you stay with me one night longer? I am waited for in Egypt, answered the swallow. Swallow, swallow, little swallow, said the prince. Far away, across the city, I see a young man in a garret. He is leaning over a desk covered with papers, and in the glass by his side there is bunch of withered violets. His hair is brown and crisp, and his lips are red as a um, pomon- pomegranate granite, and he had large and dreamy eyes. He is trying to finish a play for the director of the theater, but he is too cold to write anymore. There is no fire in the grate, and hunger has made him faint. I will wait within you one night longer, said the swallow, who really had a good heart. He asked if he should take another ruby to young playwright. जब चंद्रमा निकला तो वह उड़कर वापस प्रसन्न राजकुमार के पास पहुंचा। क्या आपका कोई भी काम इसके लिए है? वह बोला। मैं यहाँ से अभी रवाना होने वाला हूँ। अबाबिल अबाबिल छोटे अबाबिल, राजकुमार ने कहा। नगर के पास दूर में एक युवक को अटारी में बैठा देख रहा हूँ। वह एक मेज पर झुका हुआ है। उस मेज पर कागज पड़े हैं और एक तरफ एक गिलास में मुरझाए हुए वॉयलेट के फूल का गुच्छा रखा है। उसके बाल भूरे और सख्त हैं तथा होठ अनार की भांति लाल हैं। बड़ी आंखें में उसकी बड़ी आंखों में स्वप्न है और वह एक
क्रिएटर के निर्देशक के लिए एक नाटक को समाप्त करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसे इतनी ठंड लग रही है कि वह और अधिक नहीं लिख सकता। अंगीठी की जाली के ऊपर कोई आग नहीं है और भूख के कारण वह कमजोर सो हो गया है। नाटक मैं तुम्हारा साथ एक रात और रहूंगा, अबाबिल ने कहा, जिसका दिल वास्तव में ही नेक था। उसने पूछा कि इस युवा के नाटककार के पास रोशी मणि लेकर जाना चाहिए। Alas, I have no ruby now, said the prince. My eyes are all that I have left. They are made for rare sapphires, which were brought out of India 1,000 years ago. He ordered the swallow to pluck out one of them and take it to the play right. He will sell it to me. He will sell. So the swallow picked. Oh, he will sell it to the jewelers and buy firewood and finish his play. She said, Dear prince, said the swallow, I cannot do that. And he began to weep. Swallow, swallow, little swallow, said the prince. Do as I command you. So the swallow plucked out the prince's eyes and flew away to the young man's garden. It was easy enough to get in as there was a hole in the roof. Through his he darted and come into the room. The young man had his head buried in his hands, so he did not hear the flutter of the bird's wings, and when he looked up, he found the beautiful sapphire lying on the weather violets. I am beginning to the appreciated. He cried. This is from some great admirer. Now I can finish my play. And he looked quite happy. खेत की बात है कि अब मेरे पास लाल मणि नहीं है, राजकुमार ने कहा। मेरे पास अब मेरी आंखें बची हैं। ये दुर्लभ नीलमों से बनी हुई हैं, जिन्हें भारत से 1,000 वर्ष पूर्व लाया गया था। उसने अबाबिल को उनमें से एक को निकाल लेने और ऐसे नाटककार तक पहुंचाने का आदेश दिया। वह इसे किसी जोहरी को बेच देगा और जलाने के लिए लकड़ी खरीद लेगा और अपने नाटक को समाप्त कर लेगा। उसने कहा, प्रिय राजकुमार, अबाबिल ने कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकता। और उसने रोना शुरू कर दिया। अबाबिल, अबाबिल, छोटे अबाबिल, राजकुमार ने कहा, वैसा ही करो जैसा मैं आदेश देता हूँ। इसलिए अबाबिल ने राजकुमार की आंखें निकाली और युवा व्यक्ति की अटारी पर जाने के लिए उड़ान भरी। आनंद प्रवेश करना काफी आसान था, क्योंकि छत में एक छेद था। इस छेद से वह अंदर घुसा और कमरे में आ गया। युवा युवा व्यक्ति ने अपने हाथों के बीच में अपना सिर दबा रखा था, इसलिए उसने पक्षी के पंखों को फड़फड़ाने की आवाज की ध्वनि को नहीं सुन पाया। और जब उसने ऊपर की ओर देखा, उसे सुंदर नीलामणि मुरझाए हुए फूलों पर पड़े दिखाई दिखे। मेरी प्रशंसा होना शुरू हो रही है, वह खुशी से चीखा। यह भेंट किसी महान प्रशंसक की है,
अब मैं अपने नाटक को समाप्त कर सकता हूँ। और वह बहुत ही खुश प्रतीत हुआ। The next day, the swallow flew down to the harbor. He sat on the mast of a large vessel and watched the sailors working. I am going to Egypt, cried the swallow, but nobody minded. And when the moon rose, he flew back to the happy prince. I have to come to bid you goodbye, he cried. Swallow, swallow, little swallow, said the prince. Will you not stay with me one? It is winter, answered the swallow, and the snow will soon be here. In Egypt, the sun is warm on the green palm trees, and the crocodiles lie in the mud and talk lazily about them. In the square below, said the happy prince, there stands a little match girl. She has let her match fall in gutter and they are all spoiled. Her father will beat her if she does not bring home some money, and she is crying. She has no shoe for stockings and her little head is bare. Pluck out my other eye and give it and stand little myself she has let her matches fall in gutter and they are spoiled. Her father will beat her if she does not bring some money and she is crying. She has no shoes for or stocking and her little head is bare. Pluck out my other eye and give it to her. Then her father will not beat her. अगले दिन अबाबिल एक बंदरगाह तक उड़कर गया। वह एक बड़े जलपोत के मस्तूल पर बैठ गया और नाविकों को काम करते हुए देखने लगा। मैं मिस जा रहा हूँ, अबाबिल चिल्लाया, लेकिन किसी ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। और जब चंद्रमा निकला तो वह वापस उड़कर हैप्पी प्रिंस के पास आ गया। मैं तुम्हें अलविदा कहने आया हूँ, वह चिल्लाया। अबाबिल, अबाबिल, छोटे अबाबिल, राजकुमार ने कहा, क्या तुम मेरे साथ एक रात और नहीं रह सकते? सर्दी का मौसम है, अबाबिल ने जवाब दिया, और यहाँ शीघ्र हिमपात शुरू हो जाएगा। मिस्र में सूर्य हरे ताड़ के पेड़ों पर गर्म होता है और मगरमच्छ कीचड़ में पड़े रहती हैं और आलस्य के साथ उन्हें देखते रहते हैं। नीचे चौकोर मैदान में हैप्पी प्रिंस ने कहा, वह एक छोटी लड़की खड़ी है जो माचिस बेचती है। उसकी माचिस एक नाले में गिर गई है और वह सब खराब हो गई है। उसका पिता उसे पीटेगा यदि वह कुछ धन लेकर वापस घर ना लौटी तो। और वह चीख रही है, उसके पास कोई जूते अथवा जुराबे नहीं है और उसका छोटा सा नंगा है। और उसका छोटा सर नंगा है। उसका छोटा सर वही छोटी लड़की माचिस बेचती है, उसके माचिसों का एक नाले में गिर गई है और वह सब खराब हो गई हैं। उसका पिता उसे पीटेगा यदि वह कुछ धन लेकर वापस घर न लौटी तो। और वह चीख रही है, उसके पास कोई जूते अथवा जुराबे नहीं हैं और उसका छोटा सा सर नंगा है। मेरी दूसरी आंख निकाल लो और उसे दे दो। इसका पिता उसकी पिटाई नहीं करेगा। I will stay with you one night longer, said the swallow, but I cannot pluck out your eye.
You would be quite blind then. Swallow, swallow, little swallow, said the prince. Do as I command you. So he plucked out the prince's other eyes and darted down with it. He swooped past the match girls and slipped the jewel into the palm of her hand. What a lovely bit of glass! Cried the little girl, and she ran home laughing. Then the swallow came back to the prince. You are blind now, he had, so I will stay with you always. No, little swallow, said the poor prince. You must go away to Egypt. No, I will stay with you always, said the swallow, and he slapped the prince's feet. All the next day he sat on the prince's shoulder and told him stories of what he had seen in strange lands. मैं आपके साथ केवल एक रात तक और रुकूंगा, अबाबिल ने कहा, लेकिन मैं आपकी आंख नहीं निकाल सकता, तब आप बिल्कुल अंदर हो जाओगे। अबाबिल, अबाबिल, छोटे अबाबिल, राजकुमार ने कहा, वैसा ही करो जैसा मैं तुम्हें आदेश दे रहा हूँ। इसलिए उसने राजकुमारी की दूसरी आंख निकाली और इसे तार अ, इसलिए उसने राजकुमार की दूसरी आंख निकाली और उसे उठाकर उड़ चला। वह माचिस बेचने वाली लड़की के पास से गुजरा और उसकी हथेली पर नीलमणि रख दी। कितना प्यारा यह शीशा है, छोटी लड़की बोली, और वह हंसते हुए घर की तरफ भाग चली। तब अबाबिल राजकुमार के पास वापस आ गया। अब आप अंधे हैं, उसने कहा, इसलिए मैं सदैव आपके साथ रहूंगा। नहीं, छोटे अबाबिल, बेचारे राजकुमार ने कहा, तुम्हें मिस चले जाना चाहिए। नहीं, मैं अब सदा आपके पास आपके साथ ही रहूंगा, अबाबिल ने कहा। और वह राजकुमार के पाँव में सो गया। अगले सारे दिन वह राजकुमार के कंधे पर बैठा रहा और उन चीजों की कहानियां कहता रहा जो उसने विचित्र स्थानों पर देखी थी। डियर लिटिल swallow, said the prince, you tell me of marvelous things, but more marvelous than anything is suffering of men and women. There is no mystery so great as misery. Fly over my city, little swallow, and tell me what you see there. So the swallow flew over the great city and saw the rich making merry in their beautiful house, while the beggars were sitting at the gates. And he flew into dark lanes and saw the white faces of starving children looking out list, listlessly at the black street under the archway of a bridge. Two little boys were lying in each other's arms to try and keep themselves warm. How hungry we are, they said. You must not lie here, shouted the watchman, and they wandered out into the rain. Then he flew back and told the prince what he had seen. I am covered with fine gold, said the prince. You must take it off leaf by leaf and give it to the poor. The living always think that gold can make them happy. Leaf after leaf of the fine gold the swallow picked off till the happy prince looked quite dully and grey. Leaf after leaf of the fine gold he brought to the poor, and the children's faces grew rosier, and they laughed and played in the street. We have bread now, they cried. प्रिय छोटे अबाबिल, राजकुमार ने कहा, तुम तुमने मुझे विचित्र चीजें बताई, लेकिन पुरुषों एवं स्त्रियों की पीड़ाएं अन्य सभी चीजों से विचित्र होती हैं। कोई चीज इतनी रहस्यपूर्ण नहीं होती जितने की गरीबी। छोटे अबाबिल मेरे नगार पर उड़ान
भरो और मुझे बताओ कि तुम्हें वहाँ क्या दिखाई देता है। इसलिए अबाबिल महान नगर के ऊपर उड़ा और देखा कि धनी लोग अपने सुंदर घरों में मौज मस्ती मना रहे थे, जबकि भिखारी उनके दरवाजों पर बैठे थे। वह उड़कर नगर की तंग गलियों में उन गया और भूखे बच्चों के सफेद चेहरों को देखा, जो कमजोरी से अंधेरी सड़कों पर निहार रहे थे। और कुल अर्धवृत्ताकार मेहराब के नीचे दो छोटे लड़के एक दूसरे से लिपटे हुए थे, ताकि उन्हें गर्मी महसूस हो सके। हम कितने भूखे हैं, उन्होंने कहा। यहाँ मत लेटो, पहरेदार चिल्लाया, और वह बालक वर्षा में ही निकल पड़े। तब वह वापस मुड़कर राजकुमार के पास पहुंचा और उसे वह सब कुछ बताया जो उसने देखा था। मैं बारीक सोने से ढका हुआ हूँ, राजकुमार ने कहा। तुम इसे टुकड़े टुकड़े करके उतार लो और गरीबों में बांट दो। जीवित व्यक्ति सदा यह सोचते हैं कि सोना उन्हें खुशी दे सकता है। अबाबिल ने सोने के पत्थर राजकुमार के शरीर पर से उतारे, जब तक कि प्रसन्न राजकुमार नीरस और काला दिखाई नहीं देने लगा। उसने सोना गरीबों में बांट दिया और बच्चों के चेहरे खुशी से गुलाबी हो गए और वे हंसने लगे और गली में खेलने लगे। अब हमें रोटी नसीब होंगी, वह प्रसन्नता से चीखे। Then the snow come, and after the snow came the frost. The street looks as if they were made of silver. Everybody went around in furs, and the little birds were scarlet caps and skated on the ice. The poor little swallow grew colder and colder, but he would not leave the prince. He loved him too well. He picked up crumbs outside the baker's door when the baker was not looking, and tried to keep himself warm by flapping his wings. But at least he knew then he was going to die. He had just enough strength to fly up to the princess' shoulder once more. Goodbye, dear prince, he murmured. Will you let me kiss your hand? I am glad that you are going to Egypt at last, little swallow, said the prince. You have stayed too long here, but you must kiss me on lips, for I love you. It is not to Egypt that I am going, said the swallow. I am going to house of death. That is the brother of sleep. Is he not? And he kissed the happy prince on the lips, and he fell down at his feet. At that moment, a curious crack sounded inside the statue, as if something had broken. The fact is that didn't hurt, had snapped right in two. It certainly was a dreadfully hard. तब बर्फ गिरने लगी और बर्फ के पश्चात कोहरा। गालियां गलियां इस प्रकार दिखाई देती थीं जैसे मानो वे चांदी की बनी हुई हों। प्रत्येक व्यक्ति ऊनी वस्त्र पहनकर घूमने लगा और बालकों ने लाल रंग की टोपियां पहन ली और बर्फ पर स्केटिंग करने लगे। बेचारे छोटे अबाबिल को बहुत सर्दी महसूस होने लगी, परंतु उसने राजकुमार का साथ नहीं छोड़ा। वह बेकर वह बेकर के दरवाजे के बाहर पड़े हुए रोटी के टुकड़े उठा लेता, तब जब बेकर नहीं देख रहा था, और स्वयं को अपने पंखों को फड़फड़ाकर गर्म रखने का प्रयास करता। लेकिन अंत में वह जान गया कि वह मरने वाला है। उसमें केवल इतनी ही ताकत बची कि वह एक बार फिर से राजकुमार के कंधे पर बैठ पाया। अलविदा प्रिय राजकुमार, वह बहुत बुदाया। क्या आप मुझे अपना हाथ चूमने दोगे? मुझे खुशी है कि तुम आंखें मिस जा रहे हो छोटे अबाबिल, प्रिंस बोला। तुम यहाँ लंबे समय तक ठहरे रहे, परंतु मुझे होठों पर चूम लो, क्योंकि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ।
मैं मिस्र नहीं जा रहा, पक्षी बोला। मैं तो यमराज के घर जा रहा हूँ। मौत नींद का भाई होती है ना। और उसने प्रसन्न राजकुमार के होठों को चूमा और उसके पांव पर निर्जीव होकर गिर गया। उसी समय मूर्ति का एक विचित्र दरार दिखाई दे, जैसे मानो कुछ टूट गया था। तथ्य यह है कि राजकुमार का शीशे का दिल बीच से टूटकर दो भागों में बट गया। निश्चित ही बहुत भयानक पाला पड़ा था। अर्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग द मेयर was walking in the square below in company with the town councillors. As they passed the column, he looked at the statue. Dear me, how shabby the happy prince looks, he said. How shabby indeed, cried the town's councillors, who always agreed with the mayor, and they went up to look at it. The ruby has fallen out of his sweat. His eyes are gone, and he is golden no longer, said the mayor. In fact, he is a little better than a beggar. Little better than a beggar, said the town councillor. And here is actually a dead bird, his feet, continued the mayor. We must really issue a proclamation that birds are not to be allowed to die. And the town clerk made a note of the suggestion. अगले दिन सुबह सवेरे मेयर नगर परिषद के सदस्यों के साथ नीचे मैदान में सैर कर रहा था। जब वे स्तंभ के समीप से गुजरे तो उसे स्तंभ की ओर देखा। हैप्पी प्रिंस कितना बधाई भद्दा दिखाई देता है, उसने कहा। वास्तव में ही बहुत भद्दा, नगर पार्षदों ने मेयर की बात में हाँ मिलाते हुए कहा। लाल मणि उसकी तलवार से गिर चुकी है, उसकी आंखें चली गई हैं और वह अब सोने का नहीं रहा, मेयर ने कहा। वास्तव में वह एक भिखारी जैसा प्रतीत होता है। और यहाँ उसके पैरों पर एक मरा हुआ पक्षी पड़ा है। मेयर ने कहना जारी रखा। हमने ये घोषणा करवा देनी चाहिए कि यहाँ पक्षियों के मरने की अनुमति नहीं है। और नगर क्लर्क ने उसे सुझाव का को नोट कर लिया। सो दे पुल्ड डाउन द स्टैचू of the happy prince, as he is no longer beautiful, he is no longer useful, said the art professor at the university. Then they melted the statue in a furnace. What a strange thing, said the overseer of the workmen at the foundry. This broken lead hut will not melt in the furnace. We must throw it away. So they threw it on a dust heap where the dead swallow was also lying. Bring me the two most precious things in the city, said God to one of his angels. And the angel brought him the leaden heart and the dead bird. You are have rightly chosen, said God, for in my garden of paradise this little bird shall sing forevermore, and in my city of gold the happy prince shall praise me. इसलिए उन्होंने हैप्पी प्रिंस के स्तंभ को गिरवा दिया, क्योंकि अब वह सुंदर नहीं है और वह अब उपयोगी नहीं है, विश्वविद्यालय में कला प्रोफेसर ने कहा। तब उन्होंने मूर्ति को भट्टी में पिघलाया। कितनी अजीब बात है, ढलाई घर के ओवरसियर ने कहा। यह शीशे का टूटा हुआ हृदय भट्टी में तो गलता ही नहीं, इसमें हमें इसे फेंक देना चाहिए। इसलिए उन्होंने इसे एक एक कूड़े के ढेर में फेंक दिया, जहाँ मृत अबाबिल पड़ा था। नगर से उससे मुझे सबसे दो कीमती वस्तुएं लाकर दो, भगवान ने अपने एक दूत से कहा। और देवदूत उसके पास शीशे का हृदय और मरा हुआ पक्षी लेकर आया। तुमने सही चुनाव किया है,
भगवान बोले, मेरे स्वर्ग के बगीचे में छोटा पक्षी सदा गीत गाता रहेगा तथा मेरी स्वर्ण नगरी में हैप्पी प्रिंस मेरी प्रशंसा करता रहेगा। ये कहानी यहाँ पे समाप्त होती है और हमें इससे यह सीख मिलती है कि कोई भी मित्र हो या अपना कोई भी संबंधी हो, हमें उसका मुसीबत में या हर वक्त उसका साथ देना चाहिए, चाहे फिर वो खुश हो, दुख हो या किसी भी प्रकार की स्थिति में हो। धन्यवाद।